and very important word, it is lined by ciliated epithelium. When we say ciliated means there are lots of cilia. Why class? Because ovum जो फीमेल एग है वो नॉन मोटाइल है, करेक्ट? स्पर्म की हमेशा टेल होती है, फ्लैजिलम होता है, बट एग में बिल्कुल मोटिलिटी नहीं होती, देयर इज नो सीलिया, नो फ्लैजिलम. तो ये मूव कैसे करेगा? हाउ विल इट गो अहेड? सो दी सीलियास कीप ऑन पुशिंग इट अहेड, सो द फेलोपियन ट्यूब इज सीलिएटेड. ठीक है, एग अपने आप मूव नहीं करेगा. हु विल मूव इट? द सीलियास. ठीक है class, are you getting it? Let's move ahead to that. Now as we move ahead, the fallopian tube के parts पे आएंगे. Look carefully, पहले diagram देखिए. The part which is nearest to the ovary, ये ovary है, उसके nearest part देखिए, this is the ovary. This is fimbriae, finger like projections. देखो, I've drawn something pointing down, correct? These are called fimbriae. देखिए मैं erase कर रही हूँ, आपको दिख रहा है fimbriae, finger like projection. Yes, and they are connected to a funnel shaped structure. जैसे funnel होता है ना, आप कोई भी चीज fill करते हो तो उसके लिए funnel लगता है, correct? वो funnel shaped structure is known as infundibulum. I'll show you the infundibulum. See it. Infundibulum. Look at this. Look at the word here. Infundibulum. तो infundibulum किधर है क्लास? ये जो फनल जैसा ऐसा कुछ, fimbriae and infundibulum. ठीक है, fine. So infundibulum is the beginning part. It shows fimbriae. infundibulum में एक ओपनिंग है और वो ओपनिंग का नाम है ऑस्टिया. ऑस्टियम दिख रहा है? ऑस मतलब ओपनिंग. सो यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है, ostium, through which the egg will enter. Fine. Now this infundibulum is attached to the largest part, and that is the ampulla. See, middle long part. ठीक है, तो ये वाला part, I'll just share that part. ये रहा, ये हमारा ampulla है. And class, you must remember, ampulla is the point where fertilization takes place. फर्टिलाइजेशन किधर हो रहा है? इन दी एम्प्यूला. यहाँ पे द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज द एम्प्यूला. सो वेयर इज फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस? MCQ. प्लीज लुक एट दिस MCQ. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्प्यूला. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है. सपोज एम्प्यूला ऑप्शन नहीं दिया तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब. तो या तो फेलोपियन ट्यूब दिया होगा या तो एम्प्यूला दिया होगा. सपोज दोनों दिया है, our answer will remain as ampulla. ठीक है, then our answer is ampulla because you have to go to the most perfect answer. Then when you move ahead of the ampulla, you will reach a thinner part called the isthmus. Isthmus का मतलब होता है bridge. So it is a narrow part which connects to the uterus. Now read what is given in the textbook. See, the fallopian tube has 3 regions: infundibulum, ampulla, isthmus. Clear? The infundibulum is the proximal, matlab beginning part. Correct? It has an opening called ostium. Yes? It is connected with finger-like processes called fimbriae. Correct? Yes, this much. Then ampulla. It is the middle long part. I will use the word longest part. And it is the place where what takes place? Fertilization. And isthmus connects to the uterus. It is the narrow part or the end. Distal मतलब end वाला. ठीक है, सो ये हो गया हमारा पूरा फेलोपियन ट्यूब. ये देखिए एक साइड का दिखा रहे हैं. ठीक है क्लास, लुक एट इट इन डिटेल. आप फिर से एक बार देख लीजिए, आपको पूरी फेलोपियन ट्यूब दिख रही है. करेक्ट? Are you understanding it? Infundibulum, ampulla, isthmus. बराबर है? ठीक है, और ये हम कनेक्ट हो गए यूट्रस. So let's move ahead. Fine. So we are moving ahead and we have reached the uterus. Correct? यहाँ पे देखिए आपको यूट्रस बहुत क्लियरली दिख रहा है. You can see the fallopian tube also more clearly. ये ओवरी, fallopian tube, और हम पहुंच गए कहाँ? यूट्रस में.
correct? This is completely muscular bag like structure. They're roughly triangular. Okay, let's look at the uterus in detail. The uterus, we have an other name, the womb. What is the uterus known as? The womb. Okay, it is hollow. Yes, it is muscular. It's called a pear-shaped organ. Correct? Pear-shaped मतलब उसका शेप ऐसा होता है ना, जब भी पेयर बनो. Correct? So वो शेप है. It is above the urinary bladder but not connected. मेल में reproductive system bladder को connected था, ये connected नहीं, तो यहाँ पे urinogenital word नहीं आएगा. ठीक है? There is no urinogenital. Now can you see the length breadth? देखिए 7.5 जो आपका स्मॉल स्केल होता है, छोटा सा. तो यूट्रस एक्चुअली बहुत छोटा होता है, बट इट इज हाईली एक्सपांडेबल. मतलब जब जरूरत पड़ेगी, दिस यूट्रस कैन एक्सपांड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट कैन एक्सपांड a huge size. The entire baby has to grow there. Correct? So it is very small actually, but it is highly distensible. मतलब उसको खींच सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, और मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. ठीक है? लेट्स लुक इन डिटेल मोर अबाउट यूट्रस. यहाँ पे देखिए, यूट्रस हैज 3 parts. When you look at the uterus, you can see the beginning broad part. Check here. ये दिख रहा है broad? Fundus. ठीक है? फिर ये पार्ट जिसमें एक्चुअल स्पेस है, बॉडी, fundus, body, and ये neck like part, the cervix. I repeat again, cervix. Cervix is the neck like part. ये देखिए body, और ये broad end को बोलते हैं fundus. These are the 3 parts of uterus. The fallopian tube connect to the fundus. The baby develops in the body part of uterus, correct? And the baby has to move out from the cervix. It has to move out from the cervix, the neck of the uterus, right? Let's read the textbook, what it says. These are the textual words. Exact definition कैसे explain किया? Fundus, correct? कैसा है? Dome shape. ऐसा है dome shape. ये वर्ड हमने डायफ्राम में भी यूज किया था रेस्पिरेशन में, करेक्ट? सो ये ऐसे डोम शेप दिख रहा है. फ्यूंडस पार्ट सबसे थिक होता है, और वहां पे एम्ब्रियो कनेक्ट हो जाता है. इम्प्लांटेशन मतलब सपोज देयर इज अ फीटस, एम्ब्रियो डेवलपिंग, इट विल इम्प्लांट हियर. यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा. और आई शुड एक्चुअली राइट लाइक दिस. ये कनेक्शन है और ये आपका एम्ब्रियो ऐसे. So it gets implanted where at the fundus. Fine. वहाँ पे सबसे thicker zone है हमारा. Then the body is the broad part. You can see it is broad. ठीक है? And it gradually tapers down. Cervix is narrow neck-like part. ठीक है? The cervix shows 2 openings, 1 and 2. मैं elaborate कर रही हूँ. उसको बोलते हैं internal OS and external OS. What is it called? Internal OS and external OS. Look at it in detail. OS क्या था क्लास? Os. Ostium बोला था हमने, है ना? So see, you can see one opening here. देखिए, फिर एक ट्रैक जैसा है, फिर दूसरी opening, correct? So cervix neck का beginning और neck का end, and that is internal os and external os. Os मतलब ostia, opening. ठीक है क्लास? So there is proper opening. ठीक है? Can you describe the uterus? Fundus, body, cervix. Cervix is the neck. Fundus is the broadest part, even the thickest part. Body is where the entire embryo actually develops. Fine. Where is the embryo implanted? In the fundus. Fine. Now let's look ahead. Now we will talk about the wall of the uterus. Okay, uterus का wall. हमने ऑलरेडी बोल दिया मस्कुलर है, लेकिन मस्कुलर में कैसा है? लेट्स सी इट हाउ इट वर्क्स. ये देखिए फेलोपियन ट्यूब और ये रहा आपका यूट्रस. ठीक है? कैन यू सी 3 जोन्स? पेरीमीट्रियम, ये बाहर वाला, मायोमीट्रियम, ये दिख रहा है आपको, एंडोमीट्रियम.
3 जोन दिख रहे हैं, देखो 3 कलर अलग से दिख रहे, पेरी, यस, मायो, और ये रेडिश एंडो। ठीक है, मीट्रियम मतलब मसल का लेयर. So uterus is totally muscular. So it shows outermost peri, followed by myo, followed by endo. And class, each layer has a unique function. So let's look at it. The uterine wall shows how many layers here? 3 distinct layers. Perimetrium. Perimetrium क्या था? Outermost. And it is made up of muscular tissue called serosa. Serosa, more protective and more strong tissue. Tough होता है सेरोसा कभी भी. ठीक है, फिर आया मायोमीट्रियम. मायो muscular smooth muscles, very important. ठीक है, these are the muscles which are going to contract in the mother's body during childbirth. So when a mother is giving birth, she is going to push the baby out. How will she push it out? With help of hand? No, हमारे hands तो outside है और uterus के muscles अंदर है. So those are the muscles which are under control of hormones. They will contract very vigorously that time. Okay, and it will lead to parturition. Parturition मतलब birth. Parturition is scientific term for giving birth. So uterine muscles में कौन सा काम करेगा? Myometrium. अब आता है endometrium, innermost है, and it is full of vascular tissues. There are lots of blood vessels in the endometrium. ठीक है, it is full of glands. Why? When the baby is connected to the endometrium, it has to provide nourishment. वहां से mother and child will be connected to each other, and mother's blood will supply nourishment to the child. ठीक है, are you getting it? So it is innermost, epithelium है, mucus layer है, sticky है पूरा, jelly like. ठीक है, its thickness keeps on changing as per the development of the child, or when there is no development as per menstrual cycle. Correct, full of blood vessel, because we have to provide lots of nourishment to the developing embryo. Fine. अब आप यहाँ पे देखिए, see, वही चीज है, तीनों लेयर आपको दिख रहे क्लियर. फाइन क्लास, यू कैन सी द पेरीमीट्रियम, द मायोमीट्रियम और रेड वाला एंडोमेट्रियम. करेक्ट, 3 layers. Fine. So this is the uterus, 3 layers and 3 different function. Can I say in single word that perimetrium is protective, myometrium helps in giving birth, endometrium helps in giving nourishment. बराबर है क्लास? Which layer is giving nourishment? Endometrium. Embryo किसको connect होगा? Endometrium. Which layer is helping in giving birth? Myometrium. Which is the protective? Perimetrium. Very correct. ठीक है, बराबर बोला आपने. ठीक है, let's move ahead. We come to the uterus के बाहर आ गए, तो हम कहाँ पे आ गए? Vagina. Correct. The female reproductive tract का last tail end is known as the vagina. So let's look at the vagina carefully. Okay, it is a female copulatory organ. Whenever I use the word copulation, copulatory organ, हमने कहाँ use किया था ये? जब हम health system में क्या describe करे थे? Penis. Correct. So sexual reproduction के लिए what is needed? You need some organ which will help the gametes to meet. The male gamete and the female gamete should meet. So you need some part of the body to connect. So what is the connection? The vagina. Okay, I'm coming to the diagram. So vagina is a tubular part, something like this. It lies between the cervix uterus का last part था, correct, and the vestibule. Vestibule outer part, female genitalia. तो यहाँ पे uterus end हुआ और ये start हो गया vaginal passage और it will open into the vestibule. तो ये हमारा vaginal tract. ठीक है, very clear. Okay, it is completely lined by mucus, मतलब it is lubricating
The opening of the vagina is called vaginal orifice. Orifice का मतलब भी होता है opening. ठीक है? Now this vaginal opening is covered by a thin mucous membrane called hymen. Okay, a thin mucous membrane called hymen. The opening. It is protective. Fine. Now, very important term here is what is the function? What is vagina doing? So, if this is the vagina, it helps the baby to come out. That means birth canal during parturition. How will the baby move out? From uterus, it has to go to the vagina. Then only it can come out. Plus, it allows the menstrual fluid, whatever is the waste from the body, to come out. Can I add one more function? It will receive the sperm. Till what point the male gamete can go? So, in copulation, the male gamete will be released here. So, the sperms are released in the vagina. उसके बाद उनको खुद ट्रैवल करना पड़ेगा. ठीक है? यहाँ पे देखिए vagina. अब ध्यान से देखिए. अभी मैं सिर्फ ट्रैक दिखा रही हूँ, बराबर है? आपको दिख रहा है ये वेजाइनल ट्रैक? यस क्लास, ये देखिए. करेक्ट? यस. सर्विक्स के एंड से शुरू हुआ और ये वेस्टिब्यूल, इसके बीच में ये वेजाइना. ठीक है? लुक एट द फंक्शंस. हेल्प्स इन पासिंग आउट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. करेक्ट? It receives the male copulatory organ penis. It receives the semen, that means sperm, and the seminal fluid. It allows the feed to correct. दूसरे साइड देखिए डायग्राम सेम चीज का. ये देखिए अभी अगेन मैंने सिर्फ ट्रैक को पिक्चर में रिपीट बोलिए. हेलो, विल यू रिपीट प्लीज? प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा. I'm not getting your voice. थोड़ा जोर से बोलेगा बेटा. Can you type it please? Please put in the chat. I'll read it. अच्छा, टाइप कीजिए, तब तक मैं थोड़ा आगे जाती हूँ. ठीक है? ये देखिए वेजाइना. Can you say it is rough? देखो, it is showing muscular folds ना. ठीक है? ये ट्रैक दिख रहा है. ओके. What was I insisting? ये आपका cervix end हुआ, करेक्ट? और ये आपका वेस्टिब्यूल है, ओपनिंग. इसके बीच के ट्रैक का नाम वेजाइना. Are you getting it? ये देखिए वेजाइनल ऑरिफिस वर्ड था, करेक्ट? वेस्टिब्यूल वर्ड था, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और ये आपका सर्विक्स. ठीक है? व्हाट इज इट गोइंग टू रिसीव? स्पर्म्स, जो खुद आगे जाएंगे बाद में. फिर इट विल थ्रो आउट द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, करेक्ट? एंड इट विल अलाउ द बेबी टू पास ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. तब वेजाइना थोड़ा डिस्टेंड होगा, रिलैक्स होगा. नहीं तो इतने से ट्रैक से बेबी पास नहीं हो पाएगा ना, तो उसको रिलैक्स होना. इसीलिए वो भी पूरा मस्कुलर टिश्यू है. ठीक है? कुछ आया नहीं चैट में? अच्छा, व्हाट इज प्लास? मैंने सुना पर मुझे लगा शायद मैंने कुछ और सुना. ओके क्लास, व्हाट इज प्लासेंटा? सी क्लास, इफ दिस इज द यूट्रस, आई जस्ट ड्रॉ द यूट्रस हियर. तो ये वॉल पे जब एम्ब्रियो अटैच होता है, आई जस्ट मेक वन एम्ब्रियो हियर. ये एम्ब्रियो अटैच हो गया, तो उसको नरिशमेंट देने के लिए वी नीड सम कनेक्शन, और एक डिस्क बनती. कैन यू सी दिस येलो कलर प्लेट? सी, दिस इज प्लासेंटा. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड्स टिश्यू. मदर का यूट्राइन वॉल और बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड वहां पे कनेक्ट, और उसके थ्रू ही ब्लड, नरिशमेंट जो भी बेबी को मिलना है उसके थ्रू. सो प्लासेंटा इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. ओके. नाउ यहाँ पे वो वर्ड क्यों आया? वंस दिस बेबी इज बॉर्न,
ओके, बेबी डिलीवर हो गया, तो अब ये प्लेसेंटा किस काम का है, तो वो प्लेसेंटा भी फुल्ली ब्रेक हो जाता है और वो भी बाहर आता है, ठीक है। हर एक बेबी के लिए प्लेसेंटा न्यू बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा होगा, करेक्ट ना, प्लेसेंटा। तो जब बेबी आउट बाहर जाएगा तो उसका प्लेसेंटा जो वेस्ट है वो भी पूरा बनेगा, ठीक है। इज दैट फाइन? हम बाद में, प्लेसेंटा एक टॉपिक है पूरा जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आर यू क्लियर? श्योर? आई होप यू आर क्लियर। 1 minute. वरुण क्लियर हो ना? वरुण वाज हाँ आस्किंग, या ओके बेटा, ठीक। और बाद में एक पूरा टॉपिक है, तभी भी हम प्लेसेंटा करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट द वेजाइनल वॉल। हमने बोल दिया मस्कुलर, लेकिन वहां पे लेयर्स देखिए आप, इट इज डिजाइन इनटू 3 लेयर्स। देखिए आउटर मोस्ट आपको दिख रहा है क्लियरली, मस्कुलर, ये देखिए, ठीक है। फिर आपको कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, और इनर मोस्ट देखिए, स्क्वेमोस एपिथेलियम। 3 डिस्टिंक्ट लेयर, मस्कुलर, एपिथेलियल एंड इनर मोस्ट। ये म्यूकस का लेयर है, ठीक है। दिस इज द वॉल of the vagina. Let's read about it. See, you can see the inner mucosal, middle muscular connective tissue लिखा था, and outer adventitia, the protective zone. Fine. The mucosal epithelium is non-keratinized. Non-keratinized मतलब it keeps on secreting. It is not a dead layer. It's a very mucus and flexible tissue, and it has lots of glycogen. Glycogen is fatty tissue. हम जब भी ग्लूकोज स्टोर करते हैं कौन से फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन। बट देयर आर नो ग्लैंड्स, प्लीज बाय हार्ट, वेजाइना हैज नो ग्लैंड्स, वहां पे बिल्कुल भी कोई भी ग्लैंड नहीं, ठीक है। तो म्यूकस कहाँ से आएगा, वो इतना लुब्रिकेटेड कैसे होगा, अभी हम पढ़ेंगे कि वो इतना टिश्यू इतना लुब्रिकेटेड, फुल्ली उसमें म्यूकस कैसे आ रहा है, वेजाइना खुद से प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। इज दैट क्लियर? श्योर? आप आ जाइए यहाँ। या वी आर ऑन द वेजाइनल आउटर ट्रैक, द एक्सटर्नल जेनिटल। क्लास इफ यू रिमेम्बर, हमने मेल में 2 ही टर्म यूज किया था, स्क्रोटम एंड पेनिस, जो बॉडी से बाहर दिख रहे, करेक्ट। दैट वाज एक्सटर्नल जेनिटलिया इन मेल। फीमेल में यू कैन सी दैट एक्सटर्नल जेनिटलिया बहुत ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि नथिंग इज हैंगिंग एंड पेंडुलम, करेक्ट। इट इज मोर ऑफ इनर. So external genitalia are layer of fleshy tissues which protect the vaginal opening. तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रही ओपनिंग्स। तो आई गो टू द एक्सटर्नल जेनिटलिया इन डिटेल। फीमेल में टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट, आप भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। मेल में इजी है टर्मिनोलॉजी। सो लेट्स रीड व्हाट इट टॉक्स अबाउट। द एक्सटर्नल जेनिटलिया आर organs of female system which are external to the vagina. यहाँ vagina end हुआ, उसके बाहर जो organs, जो भी fleshy layer like tissues, they are collectively called the vulva. याद रखना term, ठीक है। Then can you see the word pudendum? Pudendum is also the term, but commonly used term is vulva, which indicates coverings. Which indicates covering. Now class, इसमें एक बहुत important part है कि आपको ये याद रखना है कि we are trying to protect the opening. This is the female reproductive opening. Now यहाँ पे कहीं ना कहीं embryo develop हो रहा है, तो हमें opening से बैक्टीरिया, वायरसेस, infections, fungal infections, जितना हो सके उसको protect करना है. So you can see almost lots of fleshy layers which cover this. So there are many fleshy layers which cover this open, ठीक है। अब हम इसके डिटेल में जाएंगे। ये जितनी भी लेबलिंग दिख रही है आपको, वेस्टिब्यूल, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, ये सब हमको पढ़ना, ठीक है। तो पहले हम 3 चीजें क्लियर कर लेते हैं। कैन यू सी योर 3 ओपनिंग्स? कैन यू सी योर 3 ओपनिंग्स? एनल ओपनिंग, ये डाइजेस्टिव की है, बराबर है, इससे हमें कोई काम नहीं, रिप्रोडक्शन।
आप यहाँ पे देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग देखिए आपको, यूरिन की ओपनिंग, उससे भी रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, बट इट इज वेरी नियर, करेक्ट, इट इज वेरी नियर बट नॉट कनेक्ट, ठीक है। अब आई जो हमारी रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, द वजाइना। प्लीज रिमेंबर द सीक्वेंस, urethral, vaginal, anal opening. MCQ. The vaginal opening lies below the urethral opening, or the urethral opening lies above the vaginal opening. Like that, you should not get confused. तो 3 लेबलिंग तो हमारी ओपनिंग्स ही हो गई, ठीक है, करेक्ट, फाइन. So one thing is clear, there is no connection of urinary and reproductive system in female, वो confusion नहीं. अब आप यहाँ पे 2 fleshy parts देखें, the outermost part, can you see this, thick layer, ये this is labia, labia मतलब lips, majora मतलब correct, major, so labia means majora, large, देखो ठीक दिख रहा है वो जोन, क्लास वो एकदम प्रोमिनेंटली लाइंड नहीं है, देखो इस जोन की बात कर रही हूँ मैं, फिर से उसको मार्क कर देती, देखिए लेबिया मेजोर, लिप्स की तरह देखो, 2 लिप्स, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है. अब उसके अंदर देखिए छोटे फ्लैप, लेबिया माइनोरा, स्मॉल लिप्स, मेजोरा माइनोर, ठीक है. इज दैट क्लियर? यस, वेरी क्लियर. माइनोरा, माइनोरा के अंदर हमारी यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग, द यूरेथ्रल एंड वजाइनल, ठीक है. अब इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम और डिटेल में जाएंगे, ठीक है. आई एम गोइंग इन मोर डिटेल फ्रॉम टर्म्स. लेट्स लुक एट दीस 2 टर्म्स जो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहे हैं हमको, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है. दीज आर फ्लैशी folds of skin, correct, and they form the boundary of vulva. अभी अभी आपने देखा, they are homologous to scrotum. How scrotum protects your testes, like that majora is protecting the vaginal opening, correct. Homologous मतलब structurally similar, they protect the other internal parts, fine, and they enclose urethral and vaginal opening. बराबर है, हमने दोनों ओपनिंग देखी. अब माइनोरा को देखिए, दिस इज माइनोरा, दे आर थिन फोल्ड्स, मेजोरा के कंपेयर में थिन है ना, यस, दे आर इनसाइड एंड दे जॉइन पोस्टीरियरली टू फॉर्म फोरशेट एंड एंटीरियरली टू फॉर्म अ हुड लाइक कवरिंग. अब इसको देखिए, ये टर्मिनोलॉजी को देखिए, ये जो पोस्टीरियर एंड मेक इट ब्रॉड, ये माइनोरा है, माइनोरा है. दिस जंक्शन इज द फोरशेट, दिस कोनिकल एंड, और यहाँ पे देखिए ऐसा थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, हुड लाइक, हुड इज समथिंग पॉइंटेड, क्लाइटोरिस, ठीक है, इट इज प्रोटेक्टिंग द क्लाइटोरिस. ये देखिए, ये आपका क्लाइटोरिस. कैन आई मेक इट मोर क्लियरर? क्लाइटोरिस, और अब मैं हुड बनाती हूँ डिफरेंट कलर. ये देखिए माइनोरा कनेक्ट हो रहा है ना, ऐसा, ठीक है. नाउ क्लाइटोरिस इज कंसिडर्ड इन एवोल्यूशनरी टर्म एज अ रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर. इट इज अ रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर. इट इज बिलीव्ड दैट इनिशियली क्लाइटोरिस वाज क्वाइट लॉन्ग, ओके, लाइक द मेल पेनिस. फिर वो एवोल्यूशन में reduce होता गया, and it is just remain like a small end now, correct, and it has muscles which are like penis. cavernosa और spongiosum, उसमें 2 muscles थे, इसमें भी है. plus it is a stimulatory organ, that means for any sexual excitement this clitoris is the stimulatory organ in the female, because there is no penis there, correct. तो इट इज बिलीव्ड कि पेनिस जैसा ही वो लॉन्ग था, पर वो धीरे 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 एवोल्यूशनरी ट्रेंड में वो रिड्यूस होता चला. आर यू गेटिंग इट? लेट्स रीड अबाउट इट.
देखिए आगे क्लाइटोरिस दिख रहा है आपको, ठीक है. सो इट इज अ स्मॉल कोनिकल सेंसिटिव, आई टोल्ड यू स्टिमुलेटरी है. एट द एंटीरियर एंड, आगे की तरफ है. किसके आगे? लेबिया माइनोरा, बराबर है. इट हैज इरेक्टाइल टिश्यू, देखो वर्ड आ गया, कॉर्पोरा कैवर्नोसा. पेनिस में भी था और यही वर्ड था, इरेक्टाइल टिश्यू, करेक्ट. एंड इट इज होमोलॉगस सिमिलर टू पेनिस, ठीक है. लेकिन क्लास वो पेनिस की तरह मेजर फंक्शनल में नहीं आई. इट इज देयर, इट इज एक्साइटरी स्टिमुलेटरी टिश्यू, ओके, इंपॉर्टेंट वन. बट विद टाइम इट हैज रिड्यूस्ड. फाइन क्लास, एवोल्यूशनरी ट्रेंड में बहुत चीजें चेंज होती गई, इजंट इट. तो वो धीरे धीरे जैसे हम डेवलप होते गए, मोर एंड मोर प्रोटेक्टिव होता गया सिस्टम, तो ज्यादातर फीमेल सिस्टम के सारे पार्ट इंटरनल हो गए और बहुत थोड़े से पार्ट आउटसाइड रह गए, ठीक है. दे आर मोर प्रोटेक्टिव. नाउ व्हाट इज द वेस्टिब्यूल? यू कैन सी इन द डायग्राम व्हेन यू ड्रॉ, वेस्टिब्यूल इज लाइक दिस व्हिच हैज टू ओपनिंग्स. तो ये जोन को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल. द मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बीच में जो डिप्रेशन, उसका नाम क्या रखा हमने? वेस्टिब्यूल. और उसमें कितनी ओपनिंग्स है? 2, यूरेथ्रल एंड वेजाइन. ये जंक्शन का नाम वेस्टिब्यूल, ठीक है. फिर आपने देखा होगा सिस्टम के ऊपर ऐसे बड़ा सा हुड जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज अ फ्लैशी एलिवेशन ओवर द लेबिया मेजोरा. आई शो इट टू यू फर्स्ट. ये इसके बाद see the word mons pubis, है ना. It is full of fats. ये पूरा फैटी है, lots of fats are present, ठीक है. So fleshy elevation, mons pubis, ठीक है. You can see hair outgrowth also, जिसको हम pubic hair बोलते हैं, pelvic hair बोलते हैं, ठीक है. Fine. pelvic hair हमने puberty में मेल फीमेल दोनों में दिखा है, बराबर है. Okay, let's see it in little more detail. देखिए ये एरिया का नाम हमने क्या बोला था? वेस्टिब्यूल. सी, करेक्ट. नाउ टेल मी द ओपनिंग. यूरेथ्रल ओपनिंग, विजाइनल ओपनिंग, करेक्ट. ये हमारा माइनोरा है, करेक्ट. बट वी सेड देयर इज नो ग्लैंड and we are showing you two important glands, the Bartholin's gland. But can you say it is outside? It is not inside. It is outside the Bartholin's gland. So we are coming to the accessory. The accessory glands are the Bartholin's gland. Can you see that? Yes, class. Bartholin's gland दिख रहा है आपको, छोटा सा था outside. It is known as the bulbourethral gland. मेल में क्या नाम था? काउपर्स ग्लैंड. तो फीमेल का बार्थोलिन is exactly equal to male का काउपर्स ग्लैंड. Where are they opening their secretion? In the vestibule, and they keep the vagina lubricated. They keep the vagina lubricated. देखिए फिर से ये, ठीक है. इससे कंपेयर किया हमने इसको मेल के काउपर्स ग्लैंड्स, and they secrete their secretion into the vagina, and so the vagina remains soft and lubricated, ठीक है. Is that clear? So this is the female system. अब हम फीमेल सिस्टम के एंड पे आ गए और हम सिस्टम के बाहर मेमोरी ग्लैंड्स में जा रहे हैं, जो लास्ट पार्ट था सिस्टम का, इफ यू रिमेंबर, करेक्ट. ल्यूब नहीं, कहीं पे स्पेल एरर होगा, ट्यूब होगा. कहीं पे स्पेल एरर दिखा आपको, तो वो ट्यूब होगा. कहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे. ओके, दैट मस्ट बी अ स्पेल एरर क्लास. ओके, टाइपिंग एरर होगा मेरा, ठीक है. वी आर कमिंग टू द मेमोरी ग्लैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर मैमल्स, तो मोस्ट एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स. बट आपको इमीडिएटली ध्यान में रखना है कि इट इज एक्टिव ओनली इन फीमेल्स. क्यों? फीमेल के बॉडी में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है. सो डू मेल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स? यस, बट who is active? Female. Who is producing milk? Female. Now very important, before we go to the structure, keep in mind the mammary glands produce milk
and they release milk, but only after birth. Only after birth. Please भाई, ठीक है? तो फीमेल बॉडी में मेमरी ग्लैंड्स कैसे? दे आर फ्लैशी, दे आर फुल ऑफ फैट्स, बहुत सारा फैट्स है उधर स्टोर्ड, ठीक है? बट मिल्क स्टोर्ड नहीं है, वो फैट्स मिल्क में कन्वर्ट हो जाए कब? when there is a embryo develop, तभी. Can I use the word during pregnancy? ठीक है? Now as soon as the baby is born, फिर वो मिल्क रिलीज होगा, उसके पहले रिलीज नहीं होगा. तो प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क is their major function. Can you see the word after parturition? मतलब after childbirth, correct? After childbirth भी production रहेगा बिल्कुल. A baby में drink milk for 6 months, 1 year, even 2 years. Mother's milk जितना feed किया जाए अच्छा है, correct? So the main function is production and release of milk. ठीक है class? Are we clear with this? Sure. Okay. Next important thing, the development of gland. कब डेवलप होती है मेमोरी ग्लैंड्स? प्यूबर्टी में ना. वन ऑफ द फीचर वाज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, करेक्ट? दैट टाइम बिकॉज ऑफ विच हार्मोन? फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अब आपको पता है ईस्ट्रोजन कौन बनाता है? ग्रैफियन फॉलिकल. और प्रोजेस्टेरोन कौन बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम. अगर कल थोड़ा पढ़ा है तो ये दोनों वर्ड क्लिक होने चाहिए आपको. Estrogen कौन बनाता है? ग्रैफियन follicle. And who makes progesterone? Corpus luteum. So these two hormones control the development of mammary glands also, but that is only in puberty. Before that, the mammary glands are not developed. Okay. Then, which hormone controls it? The lactotropic hormone, LTH. ये कौन रिलीज कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? ब्रेन के कंट्रोल में, ठीक है? सो ब्रेन से एक हार्मोन आएगा प्रोलैक्टिन. द कॉमन टर्म फॉर प्रोलैक्टिन इज LTH. व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर प्रोलैक्टिन? ल्यूटियो, करेक्ट? सॉरी, नॉट ल्यूटियो, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन. लैक्टोट्रोपिक हार्मोन LTH. LH नहीं है क्लास, ल्यूटियो दूसरा हार्मोन, ठीक है? एंड this hormone will be released when? अभी मैंने बोला during pregnancy, ठीक है? So how are the glands? They are a pair, one pair. Class आपने दूसरे mammals को देखा होगा? Yes, आपने dogs को देखा है, आपने tigers देखे होंगे, उनके पास भी memory glands हैं, बिल्कुल है, but उनके पास one pair नहीं ना, more than a pair भी होती, correct? Human being में again धीरे 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 रिड्यूस होते होते पहले हमारे पास भी मोर देन वन पेयर थे. ओके, हमारे एब्डोमेन्स में लाइन से मेमोरी ग्लैंड्स. इमेजिन डॉग का एब्डोमेन, वहां पे मेमोरी ग्लैंड ज्यादा होती है. यू मस्ट हैव सीन पपीज सकिंग मिल्क ना फ्रॉम मदर, दे आर सकलिंग इट, देखा होगा ना? तो मेमोरी ग्लैंड ज्यादा है ना नंबर में, वो धीरे धीरे हमारे में रिड्यूस हो गया. वी हैव ओनली वन, ठीक है? दे आर राउंडेड स्ट्रक्चर. Where is the location? Location is the thorax. You can even use the word chest. The pectoral zone, just below the skin. Subcutaneous. Subcutaneous. To be very precise, second ribs to sixth rib. हमारे पास कितने ribs होते हैं? 12 ribs, correct? 12 pairs. So from the second rib to the sixth rib, that is the location of the mammary glands. Very important MCQ. Please by heart. The mammary glands are modified sweat gland. आप मैमल हो, आपके पूरे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स है जिसमें से पसीना आता है. चेस्ट जोन में वही ग्लैंड्स को हमने मॉडिफाई करके क्या बना दिया है? मेमोरी ग्लैंड्स. So what are memory glands? They are modified sweat gland. MCQ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब हमें स्ट्रक्चर देखना है मेमोरी ग्लैंड्स का. हेलो मैम, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? Abhishek, our voice is clear. It must be an internet problem on your end because everybody else can hear it. So try reconnecting. नहीं मैं बिल्कुल.
ओके बेटा, तुम फिर से कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। अगर बहुत लोगों को वॉइस ब्रेक आ रहा है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है? ओके, नाउ वी आर ऑन द मेमोरी ग्लैंड स्ट्रक्चर। आपके टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम है। टेक्सचुअल डायग्राम ऐसा नहीं है, आई जस्ट शो यू द टेक्सचुअल डायग्राम फर्स्ट। ये टेक्सचुअल है, ठीक है? आपको लगेगा बहुत टफ है और बहुत ज्यादा लेबलिंग है, नहीं, इतना टफ और इतनी लेबलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। आप पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ज्यादा इजी हो, ठीक है? लेट्स लुक एट द मेमोरी ग्लैंड्स। मैं यहाँ पर हूँ, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले देखिए। ये साइड व्यू की तरफ है हम लोग। यस क्लास, हियर ऑन द साइड व्यू। ये देखिए, ये पूरा लेयर ऑफ फैट्स, ये येलो का, मैंने कहा क्या कहा था, फैटी टिश्यू है ना, पूरा लेयर ऑफ फैट्स है, ठीक है? फ्रॉम वेयर द मिल्क विल बी रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड द निपल, करेक्ट? द बेबी विल सकल फ्रॉम द निपल। यहाँ पे एक डार्क जोन होता है, दैट इज कॉल्ड द एरियोला, दैट इज कॉल्ड द एरियोला। और अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं, ओके, बहुत सारे लोब्स होते हैं विच आर फिल्ड विद, लंग्स में एल्वियोलाई कैसे होते हैं वैसे, ओके? अब जो नॉन रिक्वायर्ड पार्ट यहाँ पे लेबल्ड है वो क्या है, देखो, पेक्टोरल मसल्स, लिगामेंट्स, वो ग्लैंड का पार्ट नहीं पर उनका सपोर्ट, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, आपको एरियोला दिख रहा है क्लियरली। ये दो चीजें बहुत क्लियर है। यू कैन सी द एरियोला, ये डार्क जोन, एंड you can see the nipple, correct? Fine. Now let's look at the textual diagram which is more into detail. ये एकदम ध्यान, बट क्लास डिटेल उतना टफ नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। अब फिर से हम वही चीज देखेंगे। ये देखिए, पूरा येलो कलर का जोन दिख रहा है, ये पूरे फैट्स, बहुत सारा फैट्स, क्योंकि फैट से ही मिल्क बनेगा ना बाद में जब जरूरत पड़ेगी, तो ये स्टोर के रखा हुआ है, ठीक है? अब आप लोब्स देखिए प्लीज, ये देखिए, यू कैन सी द वेरियस लोब्स, है ना? सेक्शंस में डिवाइडेड है, बराबर है, ओके? अब लोब्स के अंदर देखिए, छोटे छोटे, मैं और थोड़ा उसको ब्रॉड कर देता हूँ। ये देखिए, आपको देख रहे हैं एल्वियोलाई जैसे छोटे छोटे सैक जैसे स्ट्रक्चर, करेक्ट? जैसे हमारे लंग्स में एल्वियोलाई, करेक्ट? और उनका नेटवर्क दिख रहा है छोटा, मिल्क प्रोड्यूस होके उसमें से जाने वाला आगे। तो आगे फिर एक ट्रैक है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टी मतलब मिल्क ना, लैक्टोजन, सो इट इज द लैक्टिफेरस डक्ट। देखिए, ये देखिए आ गया लैक्टिफेरस डक्ट, तो ये आया कनेक्ट होके, ये आ रहा है। अब जब लैक्टिफेरस डक्ट आगे आ जाता है तो वो थोड़ा सा सोलन हो जाता है, देखो यहाँ पे ये सोलन एरिया दिख रहा है, उसको बोलते हैं एम्प्यूला। व्हाट इज दैट जोन कॉल्ड? एम्प्यूला। एंड फाइनली इट ओपन्स इनटू द निपल। क्लास कीप इन माइंड, निपल एक सिंगल ओपनिंग नहीं, वो एक एंड है जिसमें काफी सारी ओपनिंग्स हो, बहुत सारी ओपनिंग्स, ठीक है? आर यू क्लियर? लेट्स गो बैक टू अंडरस्टैंड। निपल, ये एम्प्यूला है, ये स्वेलिंग दिख रही है, मैम वॉइस ब्रेक हो रहा। Ma'am, now your voice is breaking. Hello? लैक्टिफेरस डक्ट भी दिख रही है। Okay. Just a second. Let me check it out, the problem, and I'll get back to you. हेलो क्लास, am I audible?
Yes, ma'am, you're audible. हेलो, Yes, ma'am. मेरा लिंक ब्रेक हो गया था. आई एम शेयरिंग अगेन. ओके, Okay. मैं आ रही हूँ. हाँ, जस्ट अ मिनट क्लास. सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ये देखिए हम आ गए. क्लास दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? प्लीज पुट इन द चैट. Yes, ma'am. ओके, Yes, ठीक है. क्या मेमोरी ग्लैंड्स पे थे, करेक्ट? ओके, नाउ यू कैन सी हियर. थैंक यू क्लास. ये देखिए, लेट्स रीड व्हाट द टेक्स्ट बुक इज सेइंग अबाउट इट. दैट जस्ट थोड़ा आगे आ गए हम यहाँ पे, ठीक है. द टेक्स्ट बुक सेज दैट मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन लॉट्स ऑफ फैटी टिश्यू. बराबर है. आपने वो येलो कलर का पूरा जोन देखा था, उसमें बहुत सारे लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर. द ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 lobes. ठीक है. each lobe has alveolar gland. Each lobe has alveolar gland and lactiferous duct. And lactiferous duct. Can you repeat? Lobes थे, उसमें alveolar थे and lactiferous duct. Correct? The alveolar glands secrete milk. What they secrete? Milk, which is stored in the alveoli, and it will be released only under hormonal control. Only under hormonal control after the baby is born. After the baby is born. Fine. अब आगे देखिए थोड़ी डिटेल में. The alveoli open into the tubules. Tubules form the memory duct. It connects to the ampulla, which is connect to the lactiferous duct. Finally, to the nipple. The dark area is known as areola. See, areola is the dark area. All the lactiferous duct come to the nipple. Correct? Swelling जैसा जो wider part है उसका नाम क्या था? Ampulla. So memory tubules, memory duct, lactiferous duct, ampulla, and finally the nipple. It's like this. Okay? Is it fine? Now, because we spoke about the mammary gland, we must know something called as breast cancer. This has been given as an awareness, okay, in your book. So you can see here one clear-cut symbol. You see such red ribbon for AIDS, isn't it? For AIDS, we put like this red ribbon. This pink one is for the breast cancer. Pink indicating what? Female, correct? It's female. So breast cancer is a very, very dreaded disease. Already you have studied about cancer in health and disease, correct? So what happens in breast cancer? There's a lump, a tumor है जो कहाँ develop हो रहा है? In the breast. एक है वो कहाँ पे develop हो रहा है? In the breast. Okay, you can see that, fine. And this lump may be painless. There may not be any pain. So sometimes there may be a swelling in the breast, and we may not feel any pain. But we have to be very alert that swelling is painless, but there is a lump. जो होना नहीं चाहिए. It may cause irritation. That can be an indicator. There can be pain in the nipples. Okay, retraction. The nipple should be outward. If it is inward, then that is called retraction. Redness. Okay, scaliness, as if the skin has become dry and scaly in that area. Thickening of nipple, and some form of discharge, pus, some mucus is coming out unnecessarily from the breast. Then we must immediately check for breast cancer. It can be checked by doing mammogram. Mammogram is X-ray of the mammary gland. X-ray, ठीक है. आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करा सकते हो. बहुत डिटेल में गए तो MRI. To be 100% sure, अगर इसमें से कुछ भी पॉजिटिव आ जाता है, unfortunately, तो you have to compulsory go for biopsy. What is biopsy? You have to take out a tissue and check it for simple. वो malignant है कि benign है ना. हमने दो टाइप के कैंसर किए थे, malignant और benign. So that can be done for detection of breast cancer.
Treatment, which is the best one? Lumpectomy. मतलब surgically we will remove the breast. तो कैंसर जहाँ से originate हो रहा है will remove. See, that will lead to little bit of disfigurement, but important is survival of the person, isn't it? So lumpectomy कर सकते हैं, सबसे best method है. अगर वो already spread हो चुका है तो we will have to go for chemo and radiotherapy, you know, and mammoplasty is also done. मतलब we can do plastic surgery and make the breast appear normal, though it has already undergone lumpectomy. So this is just for awareness class. इसमें what I'll say, evaluation point of view से नहीं पूछेंगे, ठीक है? इसमें से question नहीं आए, पर बुक में दिया हुआ है and it is important, so you should know also about the breast. ठीक है? ये last part है breast related. मैम ये 100% ठीक है। फिर से बोलिए। ट्रीटमेंट 100% होता है। आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। I'll read the chat. आपने चैट में डाला क्या? Why doctors suggest mother's milk? Yes, coming to me. I'm answering this. Why doctors suggest mother's milk than packed milk for newborn? Yeah, coming to. और आप कुछ और पूछ रहे थे? Can you type it here? Okay. Now class, we know doctors suggest. हाँ, रुको मैं पढ़ लेती हूँ, एक ही बार दोनों आंसर कर दूंगी. What's that symbol? That is a symbol. That देखो हर रिबन का एक मीनिंग होता है, ठीक है? तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए पिंक रिबन यूज होता है. 100% श्योर ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नो नो. यू आर नेवर श्योर इन कैंसर. आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है कैंसर. सी इफ वी कैन रिमूव दैट ट्यूमर एंड द ट्यूमर हैज नॉट स्प्रेड तो ठीक हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी सेल यहाँ से वहां हुआ है तो वो रीजनरेट हो जाए. From breast, the cancer can go to spine, vertebral column. Okay, it can go to any other part of the body. And if it has spread, then you are already in the second stage. See, if it is in the first stage, इसीलिए बहुत बार मेमोग्राफी कैसे करते हैं? ऐसे टेस्ट करवाते हैं, ईयरली हेल्थ चेकअप में करवाते, so that we can detect it early. वो बहुत जरूरी है. After age of 45, we must go for mammography again and again, so that we can check it out. और हम जल्दी से एक्शन ले सके फर्स्ट स्टेज पे. तो चांस है, पर you cannot be always 100% sure. You cannot. Okay. Then somebody is asking why mother's milk. So you must know that mother's milk is full of protein. Okay. एक प्रोटीन होता है लैक्ट मैम अब आवाज आ रही? Hello. Hello class. Ma'am, we couldn't hear you. Can you? Yeah, now you can. Yes, ma'am. Yeah, I'm just coming. That's the last part. We'll finish it, huh? Otherwise, it will end up very abruptly. One minute, class. Sorry, class. Okay. So sorry, class. यहाँ पे आ जाए, वीरिंग पे थे हम, करेक्ट ना? तो मदर्स मिल्क क्यों सजेस्ट किया जाता है? बिकॉज वन, इट हैज अ वेरी स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड लैक्ट एल्ब्यूमिन. लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है? दिस प्रोटीन इज गुड फॉर हेल्थ. सेकेंड, it is very easy to digest.
Suppose you feed the baby milk of buffalo, बहुत heavy. If you feed with goat का milk, बहुत heavy. तो आपने देखा होगा जनरली बिगनिंग में किसका मिल्क दिया जाता है? काउ. वो बहुत डाइल्यूट, ठीक है. उससे भी बेटर होता है मदर्स मिल्क, सो डाइजेस्टेबल है. दूसरा, as soon as you start feeding the baby with any outside milk, you are making the baby at the risk of infection. Infection होने का चांस होता है. क्यों? We don't know what is the cow eating, what is the buffalo eating, that area is clean or not. It is eating pesticidal grass. We don't know all that. So what is happening? There is a very high chance that the baby may get infection, correct? Loose motion, diarrhea, dysentery, and that's why at least for minimum 6 months, 6 months तक baby को आप water भी नहीं देते हो. You have to give it mother's milk only. That is the best way. ठीक है. दूसरी बात, when you start giving outside milk, आप उसको एक वेसल में लोगे, कोई या कोई बर्तन यूज करोगे, बॉटल यूज करोगे, फिर उसको बार बार वॉश करो, क्लीन करो, उससे फिर इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है क्लास. सो छोटे बेबी को हम इन्फेक्शन में नहीं डाल सकते. आई रिपीट द वर्ड, मिनिमम 6 months, मैक्सिमम यस इफ यू कैन फीड योर बेबी फॉर 1.5 year, बेस्ट 2 year तो और भी अच्छा, इफ योर बॉडी सपोर्ट्स. ठीक है. ओके. नाउ व्हेन कैन यू गिव आउटसाइड मिल्क? ये रहे, इसीलिए टॉपिक वीनिंग. व्हाट इज वीनिंग? जब मदर्स मिल्क को हम रिप्लेस करते हैं बाय सॉलिड फूड और सम अदर टाइप ऑफ फूड दैट कैन बी एन आउटसाइड मिल्क. व्हाई? कम से कम 6 months के बाद बेबी को थोड़ा सॉलिड फूड और आउटसाइड फूड की आदत देनी, धीरे धीरे. सपोज द बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क 6 times, तो आप पहले 1 time रिप्लेस करो, फिर धीरे धीरे 2 time उसको सॉलिड फूड दे. यू नो, यू गिव देम सम पॉरेज, कोई रस दाल एकदम पेस्ट करके लिक्विड बना के, isn't it? सम सूप, सम वेजिटेबल बॉईल करके उसको मैश करके, सच फूड इज गिवन ना, करेक्ट. उसके दांत वात भी थोड़ी है ठीक से आए हुए तब तक, समझे आप? तो वो फूड लेकिन देना जरूरी है, क्योंकि उसको इंटेस्टाइन को उसकी आदत डालनी. तो 6 months के बाद आप सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं एंड मदर्स मिल्क को धीरे 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 ग्रेजुअली कम कर. And that process is called weaning. That process is called weaning. Suppose you are giving buffalo's milk, तो आप क्या करते हो? You take some milk and you put lots of water. Correct? ये ग्लास में हमने मिल्क ले लिया, उसमें पानी डाल 50-50, तो बहुत डाइल्यूट करके देना. Or you start with cow's milk. Correct? Then you may start with some porridge. You know, बहुत सारे बेबी फूड आते हैं, पाउडर्स आते हैं जिनमें सिर्फ पानी डालना होता है, फिर उसको मिक्स करके बेबी को दिया जाता है. उसमें मिनरल, विटामिन सब एडेड है, isn't it? बेस्ट इज व्हाट, जैसे आप राइस दाल खाते हो वैसे उसको अच्छे से मैश कर दीजिए. बनाना मैश किया जाता है, एप्पल मैश कर सकते हैं, एंड यू कैन गिव इट फ्रॉम होम. सो दैट इज कॉल्ड वीनिंग एंड दैट इज आल्सो नीडेड. ठीक है. बेबी को धीरे धीरे वी हैव टू गिव दैट हैबिट, सो दैट इज वीनिंग. ठीक है क्लास, आर वी क्लियर? दिस एंड्स आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. और अब जो शुरू होगा वो क्या होगा? गैमेटोजेनाइसिस. प्यूबर्टी हमने ऑलरेडी किया है, थोड़ा सा करेंगे, फिर गैमेटोजेनाइसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट, आई कैन सी समथिंग. of ovary is nearest, which part of fallopian tube is nearest to fimbriae? It is infundibulum. Infundibulum के outgrowth को fimbriae बोल. ठीक है. You don't call fimbriae as a part. Is that clear? Fine. The answer will be infundibulum. ठीक है class? Okay. So we'll be moving in the next lecture to menstrual cycle and probably one of the gametogenesis we will do. ठीक है class? Just coming back to you. Okay class? So we end up with the female system here. You'll read it again. पूरा system अभी आप पढ़ेंगे. ठीक है? And then we will get back to the reproductive cycle. You have full around 6 days to read. We have lectures on Wednesday directly. Fine? So next time we are doing menstrual cycle and how the egg and sperm is formed.
Fine, class. Okay. Thank you for today. Bye, class. Take care.